Hello students. In the last video we have seen the second type, how to find out the rational numbers in between the given rational numbers. In that second type we have seen that denominator were not there, we have taken the denominator. Now I am here with the third type. See this example, you will come to know that. Find 10 rational numbers in between minus 5 upon 6 and 5 upon 8. Minus 5 upon 6 and minus 5 upon 6 and 5 upon 8. If you will see this example carefully, then you will come to know that here denominator is given but denominator is not same, denominator is not equal. In the previous two types we have seen that if denominators, in the first type we have seen that denominators were equal, in the second type denominators were not given, and in the third type look here denominators are given but those are different one, those are not same. If like that situation is there, then first of all we have to make denominator equal, and after making denominator equal we have to start the example, we have to find out the ratios. It's very simple. Then here we are having one option how to make the denominator equal, that is one option. What is that? We have to find out the LCM of the given denominator, and after finding the LCM of given denominator we have to multiply by such a number which will gives us that LCM, means that accurate number. How to find out this? I am going to start. Look here, try to understand. It's very simple. This is the third type. I have made here type in the your textbook, those types are not given. ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इधर आपको ये चार टाइप में डिवाइड करके दिखाया है. ओके, एज यूजुअल आई विल मेक टू पार्ट्स. लिसन यार, रेडी? लुक, सॉल्यूशन, हाउ वी आर राइटिंग? लुक हियर, सॉल्यूशन गिवन. What is given? Minus 5 upon 6 and 5 upon 8. We want to find out how many numbers? 10 numbers. Okay, then first of all we have decided here denominators are unequal, means not equal, same not same. That's why we have decided we will make it equal. Okay, then we have decided we will find out the LCM of the denominator. Okay, the LCM of denominator, the LCM of denominator is, okay, I will write, you know that very well. LCM कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने एक पिछले टाइप के भी एग्जाम्पल में मैं दिखाया था. LCM डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं? 6 and 8. विच आर द डिनोमिनेटर? 6 and 8. वी विल डिवाइड दिस, स्मॉलेस्ट नंबर से इनको डिवाइड करना है. 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8. अभी देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता लेकिन 4 आ सकते हैं, तो डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे. देखो 3 1s are 3, 4 को एज इट इज कॉपी करो डाउन. 4 1s are 4, 1 ऑलरेडी है तो 1, 4 1s are 4. अंडरस्टूड? एलसीएम निकालना है तो पहले जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड करो. 2 से दोनों को डिवाइड होता है तो डिवाइड किया, लेकिन 3 को 4 से नहीं है और 4 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमने क्या किया? 3 1s are 3, 4 को एज इट इज कॉपी किया. ओके, 1 एज इट इज, 4 1s are 4. तो हमें नंबर्स क्या मिले? देखो 2 3 and 4. तो एलसीएम क्या होगा? LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4. तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24. देन हियर वी गॉट LCM इज इक्वल टू 24. तो अभी हमें क्या करना है? देखो ये जो डिनोमिनेटर्स है 6 and 8, इसको हमें 24 में कन्वर्ट करना है. तो 24 में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? देन फर्स्ट नंबर आई विल कंसिडर हियर. व्हाट इज फर्स्ट नंबर? लुक हियर, -5 upon 6 इज इक्वल टू, अभी 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 24 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर 6 को हम 6 1s are 2, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 by 4. Okay, then we will multiply 6 into 4. You remember that we should not multiply only denominator, we have to multiply also numerator. तो numerator को भी multiply करना पड़ेगा. माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 24. तो पहला नंबर हमें क्या मिला? ये नंबर -5 upon 6 में से कन्वर्ट होके -20 upon 24 में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में चला गया. ओके, अभी दूसरा नंबर
एंड 5/8 इज इक्वल टू, ओके 8 को हमें 24 में कन्वर्ट करना है। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 3 24। तो नंबर्स हमें मिले -20 डिवाइडेड बाय 24 एंड 15 डिवाइडेड बाय 24, ओके। देन द नंबर्स आर, नाउ the numbers are, ओके। नंबर्स कौन कौन से होंगे देखो, पहला नंबर हमें क्या मिला इधर, -20 डिवाइडेड बाय 24, ओके। तो -20 के बाद दूसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, -20 के बाद -90 डिवाइडेड बाय 24। हमें कितने नंबर्स निकालने वो भी देखो अभी, ओके। वी वांट टू फाइंड आउट हियर हाउ मेनी नंबर्स, 10 नंबर्स। तो इसमें इसके बीच में से 10 नंबर्स हमें लिखने हैं, ओके। -19 आफ्टर -19 -18 डिवाइडेड बाय 24, -17 डिवाइडेड बाय 24, -16 डिवाइडेड बाय 24, -15 डिवाइडेड बाय 24, -14 डिवाइडेड बाय 24, ओके, -13 डिवाइडेड बाय 24, 1 2 3 4 5 6 7, -12 divided by 24, -11 divided by 24, okay, -10 divided by 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हो गए। लास्ट नंबर कौन सा है, 15 डिवाइड बाई 24 है। तो इसको आने में बहुत टाइम है अभी, तो क्या करेंगे देखो, 10 नंबर्स मिल गए तो आगे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट 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 लिखना है और हमारा लास्ट नंबर लिखना है 15 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि इसके और इसके बीच में हमें 10 नंबर्स मिल गए, ओके। तो फाइनली आंसर में हम लिखेंगे 10 नंबर्स आर, कैसे लिखेंगे, 10 नंबर्स आर, ओके। कौन कौन से नंबर्स मिले देखो इधर, फिर से दिखा देता हूँ। -19 डिवाइडेड बाई 24 से स्टार्ट हुआ तो -10 डिवाइडेड बाई 24 तक एंड हुआ है। तो हम इधर नंबर लिखेंगे, देखो पहला और लास्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो बीच में के नंबर है वही लिखने हैं। -19 डिवाइडेड बाई 24, -18 डिवाइडेड बाई 24, -17 डिवाइडेड बाई 24, -16 डिवाइडेड बाई 24, -15 डिवाइडेड बाई 24, -14 डिवाइडेड बाई 24, -13 डिवाइडेड बाई 24, -12 डिवाइडेड बाई 24, -11 डिवाइडेड बाई 24 एंड -10 डिवाइडेड बाय 24। ये हो गए हमारे 10 नंबर्स। समझ में आ रहा है? क्या करना है देखो, फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। कौन से टाइप में एग्जाम्पल है ये पहले ध्यान से देखो और बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तीसरा टाइप चल रहा है, डिनोमिनेटर अनइक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद क्या किया हमने, वो एलसीएम आने के लिए नंबर को मल्टीप्लाई किया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता है, क्योंकि 24 हमारा एलसीएम आया है। ओके, तो हमें नंबर्स मिल गए। ये पहला नंबर है -20 डिवाइडेड बाई 24, इसके और ये लास्ट नंबर है 15 डिवाइडेड बाई 24, इसके और इसके बीच में हमें 10 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने 10 नंबर्स फाइंड आउट किए। इसके भी आगे बहुत सारे नंबर इसके बीच में आते हैं, लेकिन हमें 10 ही फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, रिमेनिंग नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट 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 करके लास्ट नंबर लिख दिया। ओके, तो हमें इधर 10 नंबर्स मिल गए। व्हाट आइडिया, डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ द थर्ड टाइप, ये तीसरी टाइप है। अभी चौथी टाइप में हम जाएंगे। देखो चौथी टाइप का मैंने इधर लिखा है, लुक दिस। ये थोड़ी सी अलग किस्म की टाइप है, ये भी ध्यान से देखो और सुनो। देखो फोर्थ टाइप, दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ दिस लेसन, और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में हम एक्सरसाइज में जाने वाले। ओके, फोर्थ टाइप, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अभी हमें टाइप में एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जांपल हम थर्ड टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये जो ऊपर दिया हुआ एग्जांपल है, हमने अभी देखा थर्ड में, वो एग्जांपल हम इसी टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कौन से भी टाइप से एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा हो सकता है ये मैं दिखा रहा हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कंटिन्यू करो। ओके,
अभी देखो इधर, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके, इधर हमें 1/4 और 1/2 में से रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इधर हम एलसीएम निकाल के क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के भी वो निकाल सकते हैं, वो नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने के बाद अगर लेस नंबर मिल रहे हैं दोनों के बीच में, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये हमने सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप में देखा है। ओके, तो अभी इधर देखो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम डायरेक्ट भी ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे, लिसन यार, solution we are writing as it is, solution given, what is given, 1/4 and 1/2। do you understand? अभी डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इधर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी, जब हम क्या करते हैं, देखो मैंने इसके पहले बोला था कि जब हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाने की कोशिश करो। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अभी ये लास्ट टाइप में मैं दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें डिनोमिनेटर इक्वल बनाना ही नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रखना है, और हमें उसके बीच में के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो थोड़ा सा एक अलग किस्म का एक टाइप है, उसको मैंने फोर्थ टाइप नाम दिया है। ऐसे भी डायरेक्टली तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा अलग है, डिनोमिनेटर इक्वल वगैरह बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर 1/4 एंड 1/2, इसके बीच में का हमें नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा। पहले ये पहला जो दूसरा नंबर है, वो पहले और दूसरा नंबर का एडिशन करना है। क्या करना है, देखो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड दिस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, we have to do addition of the given numbers, 1/4 plus 1/2, 1/4 plus 1/2 we have to add it. For adding purpose we have to do cross multiplication. Are you getting what I am saying? Cross multiply 2 into 1, what you will get, see 2, बीच में साइन कौन सा है, प्लस, 4 into 1 4 डिवाइडेड बाय 4 into 2 कितना हो गया, 8। गॉट आइडिया? 2 plus 4 is equal to 2 plus 4 6 divided by 8. Understood? What we got? 6 divided by 8. What I said, first of all we have to do addition. First of all we have to do addition of given numbers, and after adding the answer which we got, that answer we have to divide by 2. Okay, now what we have to do, what I said, the answer which we got 6/8 we got, that we have to divide it by 2. Whatever answer we are getting, that we have to divide by 2. We will divide it, what we will get, see 6 divided by 8, ये 2 न्यूमरेटर को है तो डिनोमिनेटर को जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3 into 1 कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 8 into 1 कितना हो गया, 8। अभी हमें नंबर मिला, देखो एक नंबर मिला हमें, कौन सा नंबर मिला, 3/8। ओके, तो अभी ये नंबर क्या करना है, देखो पहले हमने क्या किया, एडिशन किया। एडिशन करने के बाद आफ्टर एडिंग वी हैव डिवाइडेड बाय 2 एंड वी गॉट हियर नंबर 3/8। The number which we got here 3/8, that number and first number we have to consider now. Okay, ये हमें नंबर मिला, देखो ध्यान से। Then now we have to consider first number and this number. First number and this number, इसका पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है बार बार। 1/4 प्लस 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into 1 8, बीच में साइन, प्लस 4 into 3 12 डिवाइडेड बाय 8 into 4 32, 8 into 4 कितना होगा, 32। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? 8 into 1, बीच में साइन, प्लस 4 into 3 12 डिवाइडेड बाय 8 into 4 32। अभी आंसर क्या आता है, देखो 8 plus 12 20 डिवाइडेड बाय 32। ओके, बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइप वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 2, देन 20 divided by 32 divided by 2, that is equal to 20 divided by 32 into, ये उल्टा हो जाएगा 1/2। ओके, then we will get, what we will get, see here answer, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 10 divided by 2 1s are 2, 2 1s are 2, 10 into 1 10 divided by 32। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या होता है देखो, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 6s are 12, यानी कि 5/16 आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वी गॉट ईयर 5/16। लुक हियर,
इधर हमने पहले क्या किया, एडिशन करके ये नंबर फाइंड आउट किया, बाद में हमने पहला नंबर और ये नंबर कंसिडर किया। अभी क्या कर रहे हैं देखो, ए नंबर और ए नंबर कंसिडर करो, 1/2 एंड 3/8। सेम थिंग वी हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर। 1/2 प्लस कौन सा नंबर है वो, 3/8, 3/8। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2। 8 इंटू 1 8, बीच में साइन प्लस, 2 इंटू 3 6, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 16, 14 डिवाइडेड बाय 16। करेक्ट आंसर 14 डिवाइडेड बाय 16। देयरफॉर 14 डिवाइडेड बाय 16 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा देखो, 14 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 7 इंटू 1 7, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1 16। तो नंबर कौन सा मिला, 7 डिवाइडेड बाय 16। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? हाउ वी गॉट, लुक हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर्ड 2 नंबर्स, उसका एडिशन किया। एडिशन जो आया उसको 2 से डिवाइड करने के बाद नंबर आता है। उसके बाद फर्स्ट नंबर एंड दिस नंबर विच वी गॉट हियर, इसको हमने कंसिडर किया, उसका एडिशन किया, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमें मिला 5 डिवाइडेड बाय 16। बाद में क्या करना है देखो, सेकेंड नंबर एंड दिस नंबर इधर कंसिडर किया, एडिशन किया, 14/16 आया, उसको डिवाइड बाय 2 किया, 7/16 आ गया। अभी देखो पहला नंबर कौन सा है, देन द नंबर्स आर विच इज द फर्स्ट नंबर, 1/4। बाद में देखो 1/4 और 3/8, 1/4 और 3/8 के बीच में कौन सा नंबर हमें मिला, 5/16। ओके, बाद में देखो इधर 1/4 एंड कौन सा नंबर देखो, 1/4 एंड 1/2 के बीच में 3/8 मिला, लेकिन 1/4 और 3/8 के बीच में 5/16 मिला, तो ये सेकेंड में लिखना है, बाद में 3/8 लिखना है। नेक्स्ट 1/2 और 3/8 के बीच में हमें कौन सा नंबर मिला, 7/16, और लास्ट में कौन सा नंबर है, 1/2। देन 3 नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स हो गए 3, 5/16, 3/8 एंड 7/16। अंडरस्टूड? ये है फोर्थ टाइप। ओके, नोट्स का पेज अभी दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखो और ये नोट्स अच्छी तरह से कंप्लीट करो। ओके, इसके बाद हमें सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये है थर्ड टाइप, एलसीएम कैसे निकालना है, एंड आफ्टर गेटिंग एलसीएम हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू कन्वर्ट दैट डिनोमिनेटर इनटू द एलसीएम फॉर्म, दैट आई एम गोइंग टू शो you here. Listen and try to understand. You will come to know that this you have to copy down as it is in your notes. Got idea? This you have to copy down as it is in your notes. देखो ये फोर्थ टाइप, this is the fourth type. As it is you have to copy down in the notes without hesitation. Here 32 is there, remember, and we got here answer. This is the fourth type, and here we are going to finish the lesson. The name of the lesson which was going on, rational numbers. Thank you.